Hello students, welcome to MKH video series. My name is Aditya and the topic which we are going to discuss now is number system, that is the chapter first of class 9th. So इस chapter में हमें क्या समझना है? Rational numbers के बारे में समझना है, right? So सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने explain करने जा रहा हूँ कि what are rational numbers. So हमें पता है कि कोई भी नंबर जिसको हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि एक कंडीशन है कि जो नीचे वाला क्यू है वो कभी भी जीरो ना हो, सो वो नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं 1/2 की बात करूं, सो यू कैन सी हियर इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q. There it is a numerator and the lower one is denominator. So any number which can be represented in the form of p upon q is actually a rational number. But given thing is that if I just simply take 1/0, so the denominator portion cannot be 0. That means 1/0 is not a rational number. Or you can also say 2/0, 3/0. So any number if you just take in the numerator, but in the denominator if it is 0, so वो number क्या नहीं होगा? Rational number नहीं होगा. So कभी भी denominator में 0 नहीं होना चाहिए. That means any number in the form of p upon q, specialized cases q cannot be equal to 0. So नीचे वाला denominator कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. So these are called the rational numbers. अब आगे बढ़ते हैं. So numbers that cannot be put in the form of p upon q. अब जो बचे हुए नंबर है जिनको हम p upon q की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, उनको हम irrational numbers भी बोलते हैं. कंडीशन इज सेम हियर कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता, भले वो रेशनल नंबर है भले वो इरेशनल नंबर है, राइट? सो यहाँ पे जो p और q है ये क्या है? इंटीजर्स हैं, राइट? सो p एंड q बिलोंग टू अ सेट ऑफ इंटीजर्स. सो यहाँ पे आपको पता चल गया कि दो तरह के नंबर्स हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर्स. बोथ कैन बी you can see having the denominator not equal to 0, and the case is rational numbers can be represented in the form of p upon q. वहीं irrational numbers को हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते p upon q की फॉर्म में. So that's all about rational and irrational numbers. Now also one more point here, that every integer, you can see here that p upon q, the p and q are integers. So every integer can be represented as a rational number. कैसे? For example, मैं आपके सामने एक -1 इंटीजर ले लेता हूं. आपको पता है इंटीजर क्या होता है? होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का मिक्सचर होता है, राइट? जैसे कि हम एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, लाइक 0, -1, -2, -3 and 1, 2, 3. So all these are called integers. मैंने यहाँ पे एक इंटीजर लिया -1, मैं इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं. So every integer can be represented in the form of rational number by simply placing 1 in the denominator. कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 पिक करूं तो 2/1 is a rational number. So अगर 3 इंटीजर पिक करता हूं, so 3/1 is also a rational number. So every integer is a rational number. But अगर मैं अपोजिट की बात करूं कि कोई रेशनल नंबर लूं, so there is no restriction कि रेशनल नंबर भी क्या होगा? इंटीजर होगा. ये नहीं जरूरी, यानी कि इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है बट कोई भी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2/3 माइनस की बात करूं, so this is a rational number. It cannot be represented in the form of integer. It is a rational number. So there you can see here, that means every integer is a rational number, but rational number need not to be an integer. So ये था स्टार्टिंग में. That's all about rational and irrational numbers. So students, बढ़ते हैं आगे. अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, दैट इज अ रेशनल नंबर p upon q is said to be in standard form. So एक रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लिखने की? दैट if q is positive integer, that means ये हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. and the integer p and q have no common divisor other than 1. So इन दोनों के बीच में कोई भी दोनों जो है सेम टेबल पे रिड्यूस नहीं होने चाहिए, कट नहीं होने चाहिए, यानी दोनों के बीच में कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए जो दोनों नंबर को डिवाइड करे. आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, जैसे कि 4/8 है. सो यू कैन सी हियर दिस इज पॉजिटिव, बट लेट मी जस्ट चेक दैट देयर इज अ कॉमन डिवाइजर बिटवीन देम और नॉट. कॉमन डिवाइजर का मतलब है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे,
राइट. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 के टेबल पे दोनों रिड्यूस हो रहे हैं. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. दैट मीन्स देयर इज अ कॉमन डिवाइजर 4 बिटवीन 4 एंड 8. सो वो रिड्यूस नहीं होने चाहिए, कट नहीं होने चाहिए सेम टेबल पे. समझ रहे हैं आप. सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि दोनों का जो कॉमन डिवाइजर है वो क्या है, 4 है. सो इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो यहाँ पे 4/8 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है रेशनल नंबर. राइट. सो कैसे लेके आऊंगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको रिड्यूस करके. नाउ 1/2 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. राइट. सो द स्टैंडर्ड फॉर्म इज when there is no common divisor other than 1. अब ये सिर्फ 1 के टेबल में जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई कॉमन नंबर नहीं है जिनके टेबल में ये दोनों डिवाइड हो जाएं. राइट. सो दिस इज हाउ a standard form is that there is no common divisor between P and Q. You can see this is P and this is Q. So इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है कि वो दोनों एक सेम टेबल पे कट ना हो रहे हो. Then it is called the standard format. Right. बढ़ते हैं आगे. That between two rational numbers x and y, you can see दो रेशनल नंबर्स हैं x और y. इनके बीच में कोई रेशनल नंबर जो लाई करता है वो हम कैसे निकालते हैं? Simply add them and divide by 2. So this is the rational number that lie in between, you can say, two numbers x and y. So if there are two rational numbers, you can say x and y. So what is the rational number between? So how we will find out the between rational number? यानी कि हम दोनों के बीच का rational number कैसे निकालेंगे? Simply add करके और उसको 2 से divide करके. So this is the method by which we can find out the rational number that lie between x and y, two rational numbers. That's all. So students, बढ़ते हैं आगे. अब जो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं that is decimal representation. अब decimal representation क्या होता है? Let me just read here that every rational number can be expressed as a decimal. So हम किसी भी rational number को कैसे represent कर सकते हैं? In the form of decimal. So मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा. यहाँ पे जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो फर्दर 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, नेक्स्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एंड द थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. राइट. सो 1 by 1 तीनों का एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, देन नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. तीनों में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं 1 by 1 विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सो आप ध्यान से समझिएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्मल डिवीजन लेता हूं 8/2, आपको पता है ये एक रेशनल नंबर है 8/2. अब मैं इसको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में चेंज करने जा रहा हूं, एक्सप्रेस करने जा रहा हूं. राइट. सो आप देख सकते हैं अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करता हूं 2 4 जा 8. नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल गिव मी द रिमाइंडर एज 0. सो जिन रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते वक्त रिमाइंडर 0 आ जाए, दैट मीन्स डिवीजन कंप्लीट हो जाए, दैट मीन्स खत्म हो जाए. खत्म होने का मतलब है टर्मिनेट हो जाना. सो वो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लाई करते हैं. समझ गए आप. सो फॉर एग्जांपल अगर एक और एग्जांपल लूं लाइक 33 डिवाइड बाय 8. सो लेट मी जस्ट परफॉर्म दिस डिवीजन एंड रब दिस. सो 33 डिवाइड बाय 8, दैट इज, let me check that it is a terminating decimal representation or not. So let me just change the marker here. So 33 divided by 8. Now 8 4 जा 32, right? Subtract करेंगे कितना आएगा मेरे पास 1. Now इसके बाद मैं decimal लगाऊंगा तो एक 0 आएगी. Now 8 1 जा 8, right? Subtract करूंगा 2 आ गया. Decimal से एक 0 आएगी. Now 8 2 जा 16, right? Subtract करूंगा कितना आया 4. फिर decimal से 0 आएगी. 8 5 जा 40. Now आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास 0. So you can see here that 33/8, which is a rational number, is actually a terminating decimal representation. So 33/8 lie in terminating decimal representation. So these are the examples of terminating decimal numbers, right? So बढ़ते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कौन से होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3/13 लेता हूं एज रैंडम नंबर. सो लेट मी जस्ट शो यू द डिवीजन ऑफ 3/13. यू कैन सी 3 विल कम इनसाइड एंड 13 इज आउटसाइड. अब मैं डिवाइड करने से पहले देखता हूं कि 3 जो है वो 13 से छोटा है. सो हाउ इट विल कम इन द टेबल ऑफ 13. सो मैं यहाँ पे डेसिमल लगा के पहले क्या कर लेता हूँ 0 लगा लेता हूँ. राइट. सो लेट मी काउंट द टेबल ऑफ 13.
तो 13 2 जा 26, राइट। सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना आएगा मेरे पास 4 आएगा, राइट। अब मैं क्या करूं, डेसिमल लगी है तो 0 आएगा। नाउ 13 3 जा 39, राइट। सब्ट्रैक्ट करूंगा 1 आ गया, पॉइंट से 0 आ गई। नाउ 13, अभी 10 जो है वो 13 से छोटा है, तो लेट मी प्लेस अ 0 हियर सो दैट विल बिकम 100। सो 13 7 जा 91, राइट। सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना आया मेरे पास 9 आ गया। अब बात आती है आगे फर्दर, डेसिमल से 0 आएगी। नाउ अब कितने पे जाएगा आप काउंट कर सकते हैं दैट 13 7 जा 91 इज ग्रेटर, सो 13 6 जा, सो व्हाट इज 13 6 78, राइट। सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना आएगा मेरे पास 10 minus 8 is 2, 8 minus 7 is 1, 12। Now decimal से एक 0 आएगी। Now at the table of 13 let me count to 120. So we know that 13 9 ja is 117. So let me just place 13 9 ja 117. So अगर मैं subtract कर रहा हूं तो यहां पे लिख रहा हूं कितना आएगा। So what is 10 minus 7 is 3, then 1 minus 1 is 0. So only 3 is remaining here. Now decimal से 0 आएगी। Now again you can see here that we reach to the same point where we have started the division. So 30 को मैं 13 से डिवाइड कर रहा था, सेम चीज आ गई है। मैं 13 के टेबल में 30 कितने पे जाएगा, अगेन 2 पे जाएगा, आप देख सकते हैं। सो यही दोबारा रिपीट होने लग जाएगा आगे 2 3 0 7 6। सो इट इज काइंड ऑफ अ नॉन टर्मिनेटिंग, जो डिवीजन खत्म नहीं हो रहा बट एक पॉइंट पे आके दोबारा रिपीट होने लग गया। सो दैट मीन्स 3/13 को हम क्या लिखेंगे 0.23076 देन अगेन ये डिजिट्स वापस रिपीट होंगी 2 3 0 7 6 9। सो इट इज गोइंग ऑन अनलिमिटेड टाइम्स। सो ये डिवीजन खत्म नहीं हो रहा, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड ऑल्सो रिपीटिंग। यू कैन सी हियर दीज डिजिट्स आफ्टर 9 आर गोइंग टू बी रिपीटेड। सो ये दोबारा रिपीट हो रही है और खत्म भी नहीं हो रहा, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब बचा लास्ट एग्जाम्पल, लेट मी फर्स्ट रब दिस। सो अब बचा हुआ जो थर्ड है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, राइट। सो जो खत्म भी नहीं हो रहा बट रिपीट भी नहीं हो रहा, एवरी टाइम द डिफरेंट डिजिट, देयर इज नो पैटर्न इन द डिवीजन। सो कोई भी पैटर्न नहीं होगा डिजिट्स में, जैसे कि यहाँ पे एक टाइम के बाद आके 2 3 0 7 6 9, फिर दोबारा 2 3 0 7 6 9। सो एक पैटर्न बन गया, वही डिजिट्स रिपीट हो रही। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हर बार डिफरेंट पैटर्न आएगा, दैट मीन्स नॉट द सिमिलर डिजिट्स आर गोइंग टू कम आफ्टर डिवीजन। सो यहाँ पे क्या, ना ही डिवीजन खत्म होगा ना ही रिपीट होगा। सो रैंडम वैल्यूज विल कम। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं पाई, जैसे आपको पता है दैट इज 22/7, राइट। सो अगर मैं 22 को 7 से डिवाइड करता हूं, सो 7 3 is 21, then subtract 1 remaining 0.0, then 7 1 is 7, then remaining 3.0, so 7 4 is 28. So like this it will go on and also not repeat it itself. So it goes on with a different random values. So जो पाई है वो किसका एग्जांपल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो डिजिट्स जो है एक पॉइंट पर रिपीट नहीं होगी, डिफरेंट पैटर्न से बढ़ेंगी। So these are the three representation of decimal, and also a rational number can be expressed in the form of decimal numbers. So it can be represented in 3 parts. So the questions will come in the next session, like differentiate between the terminating, then non-terminating repeating and non-terminating non-repeating. So आपको क्वेश्चन में रेशनल नंबर्स दिए होंगे, आपको उनमें बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सो दैट वाज ऑल अबाउट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि हम अपोजिट कैसे करेंगे। अगर डेसिमल को मुझे रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, सो हाउ वी विल डू इट इजिली। सो हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है गिवन डेसिमल नंबर को। अब मैंने आपको बताया कि डेसिमल नंबर्स 3 टाइप्स के होते हैं, दैट आर टर्मिनेटिंग, देन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एंड थर्ड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो हम कैसे उनको वापस कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर्स में। सो दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चंस दैट विल कम इन द फर्दर वीडियोस, राइट। सो आई एम जस्ट गिविंग अ रफ लुक आउट। सो जैसे कि आपको दिया हुआ है 0.7777। सो आपको दिख रहा है कि ये कौन सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आप देख सकते हैं ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन खत्म नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है। तो हम इसको
सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इस डेसिमल को, बिकॉज इट्स लुक क्वाइट ऑकवर्ड कि हम बार बार 7 लिखें. सो हम क्या करते हैं, इसको 7 बार में रिप्रेजेंट करते हैं. दैट मीन्स द डिजिट विच इज हैविंग दिस लाइन अबव इट, इसको हम बोलते हैं बार. क्या बोलते हैं? BAR, बार. सो इस लाइन का मतलब है कि जितनी डिजिट्स इस बार के नीचे हैं वो रिपीट हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 71 बार की बात करूं, so that means it is like 717171, right? So here I am writing 0.7 bar, that means it is 0.7777, right? So this is how I can shortly represent 0.777 so on as 0.7 bar. So the digit which is repeating, we can simply place a bar above it. So this is how we can represent 0.7777 as 0.7 bar. राइट नाउ ये एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है. राइट सो मैं इसको वापस इसके रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करूंगा. सो देयर इज अ फॉर्मूला हियर कि गिवन डेसिमल एज यू कैन सी हियर इज दिस. सो हाउ आई विल कन्वर्ट इट इनटू इट. सो ये जो जीरो या इस डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट. राइट और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. सो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आप देख सकते हैं इंटेग्रल पार्ट क्या है यहाँ पे 0. सो मैं 0 प्लेस कर देता हूं यहाँ पे इंटेग्रल पार्ट की जगह, प्लस उसके बाद नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट. सो नंबर क्या फॉर्म हो रहा है जो डिजिट्स डेसिमल पार्ट के साइड में है, दैट इज 7. सो मैं सिंपली 7 प्लेस कर देता हूं अपॉन, यू कैन सी नंबर फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर ऑफ 9 एज नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट. इसका मतलब है कि जितने डेसिमल पार्ट में डिजिट्स हैं उतने ही 9 मुझे डिनोमिनेटर में प्लेस करना है. यहाँ पे एक ही डिजिट है 7, तो मुझे एक ही 9 प्लेस करना है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 71 होता तो मैं क्या करता, 71 अपॉन 99. जितनी डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट में उतने ही डिनोमिनेटर में 9 लगाने हैं. समझ में आ गई बात. सो दिस इज द ट्रिक हाउ यू कैन सिंपली कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल फॉर्म. राइट सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिया था जिसमें 0.7 बार जो था आपके पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था, इसको मुझे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. सो दैट विल बी लाइक 0, दैट इज द इंटेग्रल पार्ट हियर प्लस द डिजिट इन द डेसिमल पार्ट अपॉन द सेम नंबर ऑफ 9 एज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट. So this is the represent. So 0 plus 7 upon 9. You can see this is 7 upon 9. So 0 में कुछ भी जोड़ेंगे वही आ जाएगा. So its addition is 7 upon 9. So this is the representation of 0.7 bar into rational form. That means 0.7 bar decimal can be represented as 7 upon 9. So देख सकते हैं आप कैसे रिप्रेजेंट किया. एक एग्जांपल मैं और लेता हूं यहाँ पे. Let me first rub this example. So अगर यहाँ पे आपके पास होता 2.49 बार. सो आप देख सकते हैं ये भी एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है. सो इसको अब दोबारा मुझे किस में कन्वर्ट करना है, रेशनल फॉर्म में. तो आप ये क्या है, इंटेग्रल पार्ट. राइट सो लेट मी जस्ट पुट दिस इंटेग्रल पार्ट हियर, दैट इज 2 प्लस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट. सो नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट इन द डेसिमल पार्ट इज 49. सो आप देख सकते हैं कि डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं तो मुझे सिंपली डिनोमिनेटर में 2 9 लगा देने. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. अब यहाँ पे आप चाहे तो एलसीएम लेके इसको फर्दर सॉल्व करके एक सिंगल रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आपको पता है कि 1 और 99 का एलसीएम कितना होगा, 99. सो 1 के टेबल में 99 कितने पे आता है, 99 पे आता है. सो 99 इंटू 2 इज 198 प्लस 99 के टेबल में 99 1 पे जाता है. सो 1 इंटू 49 इज 49. यू हैव टू टेक सिंपल एलसीएम ऑफ दैट. So 198 plus 49, what it is? So 198 plus 49. Now 8 or 9, 17. 1. So 10 or 4, 14. So 247 upon 99. So this is the decimal. You can see conversion into rational form, right? So I have converted 2.49 bar. So आपको पता है 2.49 bar means 494949. So it is written like this. So 2.49 bar in the rational form is 247 upon 99. So this is how you have to convert any given decimal number into rational form. So students बढ़ते हैं next topic की तरफ. अब मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि जो मैंने आपको decimal representation 3 types के बताए थे, जिसमें कि first one was terminating
then second one was non-terminating but repeating, and third one was non-terminating non-repeating. Right? Now इनमें से फर्स्ट टू जो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये तो किस कैटेगरी में आते हैं? रेशनल नंबर्स की. एंड द थर्ड वन विच इज लेफ्ट दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इररेशनल नंबर्स. सो आपको पता चल गया कि ये दोनों जो है रेशनल नंबर्स होते हैं और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स. आपके पास आगे क्वेश्चंस इस तरह के भी आ सकते हैं कि लाइक टेल सम इररेशनल नंबर्स रैंडमली. सो आप कैसे बताएंगे कि इररेशनल नंबर? फॉर एग्जांपल आपको पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही इररेशनल नंबर्स होते हैं, जो कि ना ही खत्म हो और ना ही रिपीट हो एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद. सो फॉर एग्जांपल 1.0100, let me just take 10 100 1000 1 4 times 0 and so on. So आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिट्स जो है रिपीट नहीं हो रही, चेंज हो रही है. यहाँ पे 1 0 है तो next time 2, then 3 4 zeros 5 zeros. So it is kept on increasing number of zeros. So आप देख सकते हैं कुछ भी ऐसा एक पैटर्न बना सकते हैं. For example, if I just talk about 1.707007 3 times 0, or you can say so on. So any kind of digits you can that are not repeating, so that are called non-repeating, and also they are not terminating. So ये खत्म नहीं हो रहे, that means they are moving. So these are the examples of non-terminating, non-repeating, or you can say irrational numbers, right? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे जो ये है कि for positive real numbers following identities hold. Sorry. Now अब आप यहाँ पे देखेंगे मैं आपको कुछ identities बता रहा हूँ. So observe it very carefully. Now here the first identity is square root AB. So आप देख सकते हैं A और B multiply में, so it can be written like this. So square root AB आप देख सकते हैं दोनों जो A और B हैं वो combinedly square root के अंदर है. So it can be written as square root A into square root B. So अलग अलग square root कर देंगे, so that will make no change. So इसकी identity क्या है? Square root AB is equal to square root A into square root B. So ये dot का means है multiply. Remember that. Now second identity is square root A upon B. So आप देख सकते हैं यहाँ पे A upon B whole square root में है, तो मैं इनको भी अलग अलग स्क्वायर रूट में कर सकता हूँ, यानी स्क्वायर रूट A अपॉन स्क्वायर रूट B. So this is the second, and now coming on to third, that is root A plus root B into, you can see here the brackets are in multiplication, so root A minus root B. So root A plus root B, root A minus root B, that will be A minus B. You know the identity A plus B, A minus B, that means A square minus B square. So similarly root A plus root B, root A minus root B will be A minus B, right? Now moving on to the fourth one that says A plus root B, A minus root B. You can see A into A, that will get you A square, and root B into root B will get you B. So if you just multiply and solve it, you will finally get A square minus B. So that means A plus root B, A minus root B is A square minus B. That's the way to just keep in mind that what will be the formula of A plus root B, A minus root B, right? So moving on to the last identity, that is root A plus root B whole square. Now we know A plus B whole square. What was that? A square plus B square plus 2AB. अब यहाँ पे भी सेम है, अगर रूट A plus root B का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा? A plus B plus 2 root AB, right? So you can see here just एक पावर कम हो गई है, but the whole formula was same as of A plus B whole square. So these are the identities and the differentiation between rational and irrational number based on terminating and non-terminating, repeating and non-repeating. So that was all in this introduction portion. Now in the next video we are going to discuss about the questions and exercises. That's all.